الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اے اللہ جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں ہے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے جیسے کہ ہماری ٹیکنیکل وجہ سے ہماری کلاس نہیں ہو پائی تھی آواز برابر نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم نے ریکارڈنگ بھی آپ لوگ کو نہیں پہنچا سکے تھے اور اسی کے مطابقت میں جو 2 کلاس گزر چکے ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے آج اسی عنوان کو ہم پھر سے تھوڑا شارٹ کر کے آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا کیونکہ ایک کلاس تو کمپلیٹلی مس ہو چکی تھی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس میں الیکٹریسٹی نہیں تھی تو خیر موضوع کی طرف میں آگے بڑھتے ہیں اور کنسیڈر یہ کیا جا سکتا ہے کہ آج ہی پہلی اور سیکنڈ کلاس ہے یعنی 2 کلاسز کا جو شیڈیول ہم نے کیا تھا 17 اینڈ 18 دسمبر کو وہ آج ہے یوں سمجھا جا سکتا ہے سو عنوان ہمارا یہ ہے کہ عورت کا مقام عورت کی اپنی رشتہ داری میں جو بھی وہ اپنے نسبت سے اپنا کام انجام دیتی ہے اپنے حقائق کا انجام دیتی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم بہت ہی اس میں تھوڑا کمزور پڑ رہے ہیں یا پھر ہمیں ایک بوسٹنگ پرسنالٹی کو چاہیے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرے موٹیویٹ کس طریقے سے کرے انسپائر کس چیز سے ہو ہمیں تو ہمیں کوئی کیا چاہیے ایک نمونہ ہونا چاہیے یعنی کہ ہم کسی کو دیکھ کر ان سے سیکھیں اور عملاً ہم وہی کرنا چاہیں اور ہمارے کیا ہو جاتی ہے اس میں کچھ پرسنل فیوریٹزم بن جاتی ہے کہ ہم کسی کو فیوریٹ بنا لیتے تو کیوں نہ ہم صحابہ کرام کو صحابیات کو ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کو اپنے فیوریٹزم لسٹ کی سب سے پریورٹی کی لسٹ میں لے کر آئے اور جو کچھ بھی آپ جو بھی سچویشن میں ہے کہیں بھی کوئی بھی سچویشن میں ہے ریلیٹیبل کرے اپنے آپ کو اس دوران میں اس حالات میں آپ کوئی بھی حالات میں ہو سکتے ہیں اور کہیں سے بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایسی یہ اس طریقے میں ابھی یہاں پر آمد آ چکی ہے اس مرحلے میں آپ کی زندگی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اب آپ جسے اسباق لیں گے آپ جب بھی اسباق لے سکیں گے جب بھی اس چیز کو آپ امپلائی کر سکیں گے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں گے ایگزیکیوٹ کر سکیں گے جب آپ پلاننگ کریں گے لیکن پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کے بارے میں سارا کچھ علم ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس میں اتنا کچھ علم ہونا چاہیے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جس سے کہ آپ انسپائر ہو آپ کو ان کی کوئی بایوگرافی معلوم ہونی چاہیے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کہ ہم ایک بہترین زندگی بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ ہمیں عورت کا انتخاب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عورت کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے ہماری آمد اس وجود کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو کیا ہم اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم اس وجہ سے جانچ رہے ہیں کہ کہیں کوئی اگر لوپ ہول باقی رہ جاتا ہے اگر زندگی گزارنے میں یا کسی سے تعلق بنانے میں کسی سے تعلقات کو لے کر چلنے میں کسی کے معاملات کرنے میں کسی سے معاملات کروانے میں آپ کی گفتگو میں ہر اس چیز میں کن شعبوں کو آپ کو سب سے پہلے مکمل کرنا ہے ایک پوری کی پوری پرسنالٹی اپنے آپ ہی بنانا ہے ابھی جتنے بھی بہنیں موجود ہیں 15 بہنیں ہیں یہاں پر ابھی موجود اس میں کوئی بہن ہوگی کوئی شادی شدہ ہوں گے کوئی غیر شادی شدہ ہوں گے اپنی اپنی نسبت سے آپ کا جو بھی رول ادا ہو رہا ہے ابھی اس وقت میں آپ صرف ایک بہن تو نہیں ہوگی بہن ہوں گے تو کسی کی بیٹی بھی ہوں گے کسی کی بیوی بھی ہوں گی کسی کی ماں بھی ہوں گی تو کتنے رولس ہیں آپ کے پاس میں اس وقت بیٹی بہن آپ ہو سکتے ہیں بیٹی بہن ماں یہ بھی ہو سکتے ہیں اور 4 جتنے بھی ہیں آپ کو ملے ہوئے ایک عورت کے کتنے رشتے ملتے ہیں بیٹی پھر وہ بہن بنتی ہے کسی کی بیوی بنتی ہے کسی کی ماں بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ اتنے پورے کو لے کر آپ ایک ہی پرسنالٹی میں اگر ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنالٹی کس طریقے سے بنانا دیکھیے پرسنالٹی خواہ مرد ہو یا عورت ہو آپ کو ایسے بنانا ہے جو کہ فطرت اسلام کو قبول کرتی ہو
फितरत इस्लाम पर आपकी जिंदगी मुबन्नी हो, यानी कि आप अपनी फितरत से मुकरते नहीं हैं। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। और फिर जो दूसरा मरहला आता है अपनी जिंदगियों को देखने के लिए, वो है ईमान। देखिए ये हर उसके लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें पुकारा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, यानी कि हम अगर कहते कि हमें पुकारा गया है क्योंकि हम ईमान रखते हैं, ये हमारा अंदाजा है, ये हम ईमान रखते हैं। लेकिन क्या हमें ईमान के बारे में सब कुछ पता है? ईमान किसे कहते हैं, ईमान के क्या तकाजे होते हैं, ईमान को कितनी चीजें मुकम्मल करती है और उसके कितने अकसाम होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आता है अखलाक। क्या हम हर वक्त अखलाक में रहते हैं, हम अखलाक से पेश आते हैं? और अखलाक के भी क्या क्या तकाजे होते हैं, अखलाक में कितनी बातें शुमार होती है, क्या वो इंटेलेक्चुअल चीज आप में आ चुकी है? और दूसरा, फिर इसके बाद में जो बात आती है एक पूरी पर्सनालिटी में, कंप्लीट एक अच्छी पर्सनालिटी जो बनाती है बतौर मुस्लिम। अगर आपको ये लक़ब चाहिए कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान औरत हूँ, तो उसके लिए इन 5 बातों को जानना जरूरी है, जिसमें कि ये चौथी बात भी आती है, तज़किया व तरबिया आपकी की जा चुकी हो। तभी आप सारी चीजों को अपना सकते हैं, मुकम्मल तौर पे उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तज़किया व तरबिया, तज़किया आपको करना है, तरबियत आपको लेना है। इन दोनों की चीजों में भी फर्क है। क्या इस उन्वान भी आप पूरा मुकम्मल इल्म हासिल कर चुके हैं? फिर होती है इत्तिबा। इत्तिबा किसकी होनी चाहिए? इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम जितने भी उन्वान पर बातें करेंगे, हम जितने भी उन्वान को देखेंगे थ्रू दिस ग्लास, मतलब आप जब अपनी ऐनक से देख रहे हैं और जिन बातों को भी आप सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन पहलुओं का होना जरूरी है। ईमान, फितरत इस्लाम, अखलाक, तज़किया व तरबिया और इत्तिबा। इन 5 चीजों का अगर मैं उन्वान में शामिल ना करूं, तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती। मतलब इस उन्वान में कुछ ढीलापन रह जाएगा, और जैसे कि आप पे असर होना चाहिए पूरा असर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें बिल आखिर जित जो भी हमारी पर्सनैलिटी बनाना है, हम जैसे पेश होना है, आखिरकार हमें पेश होकर किसके सामने खड़े होना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है। तो इस चीज से हमें डरना भी है, और दुनिया में रहकर हमें मोहब्बत इतनी करना है कि शदीद मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम करते हो। ये हमारे तकाजे होने चाहिए। तो हम जो भी उन्वान को जितने भी दिन देखेंगे, ये एक कंपाइल्ड करके आपको कौन एकदम छोटा सा 7 डेज के कोर्स में आपको शामिल किया जा रहा है। लेकिन आपको जितने भी लक़ब मिले हैं बतौर औरत, यानी आप किसी की माँ हो सकती है, बेटी, तो ये मिसाली बहन, मिसाली बेटी, मिसाली बीवी और मिसाली माँ, ये सारे उन्वानात को पेश नजर रखने के लिए ये 5 पहलुओं को आपको देखना जरूरी है। इसमें अगर आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप मुकम्मल इत्मीनान से है कि हाँ यहाँ पर मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि मैं इन बातों को जानती हूँ और ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्या है? ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसमें आप पूरे खरे उतरे हैं। किसमें? सबसे पहला, अगर आज की क्लास में अगर मैं कवर करूँ, तो फितरत इस्लाम के तौर पे अगर हम देखेंगे, फितरत इस्लाम किसे कहते हैं? फितरत इस्लाम उसको कहते हैं, यानी कि एक जो शख्स पैदा होता है, हर किसी को पता है कि वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे जब पैदा किया है तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। और ये बात सबको वाजे है, यानी कि जो कोई भी शख्स दुनिया में आता है, वो पैदा होता है, वो बतौर इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे पैदा किया है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में हदीस बहुत सारी मौजूद है, मसनून हदीस है कि अल्लाह ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, यानी तौहीद पर और उसकी तखलीद पर पैदा हुआ है। जैसे ही उसे शऊर और समझ आती है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने की चीज है, तो यहाँ पर खदशा लायक हो सकता है किस चीज का? ये हदीस हमें डिफाइन करती है कि फितरत इस्लाम को जानना कितना जरूरी है। और फितरत इस्लाम में जब आप पूरे इस मफहूम को समझते हैं, तो उसके पैदाइश से लेके उसकी जवानी तक का जो रोल होता है, अब वो खैर में भी बदल सकता है, वो महफिल के लिए, वो शर में भी, माशरे के लिए बन सकता है। तो वो फितरत इस्लाम का ही उसमें रोल अदा होता है।
कैसे, इसको पूरा आप मुकम्मल सुनिए। फितरत इस्लाम आखिर है क्या? इंसान की फितरत ये पैदा होने की तौहीद पर है। उसकी तखलीक यानी कि उसको बनाने के इसमें वो वजूद भी आया। अल्लाह ने इस मखलूक की तौर पे उसे अगर यहाँ पर दुनिया में भेजा है, तो वो फितरत में उसके तौहीद भी है और तखलीक भी। तखलीक में क्या है कि वो आया है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो ये बामकसद जिंदगी हो गई उसकी। अगर इससे हटकर वो कोई काम करता है, यानी तौहीद से हटकर अगर कुछ काम करता है, यानी कि वो जो उसकी फितरत के साथ जो पैदा हुआ है वो उससे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि गलत रास्ते पर चला गया। फिर दूसरी इसमें ये चीज है कि उसके साथ में एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन बिल्ट उसकी वायरिंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने एक तखलीक पर उसे पैदा किया था, एक मकसद के साथ में अल्लाह ने भेजा है। वो मकसद है कि हम खलीफा बनाकर भेजे गए हैं। खलीफा यानी कि हम एक नुमाइंदगी के तौर पर एक हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इसकी इस्लाम में हमारी जिंदगी कैसी होना चाहिए। हम जब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या चीजें सिखाई है और क्या हम उसको बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तखलीक पर इंसान पैदा हुआ है। और वो जैसे ही शऊर और उसको समझ आती है, आगे चलकर उसकी समझ और शऊर के एतबार से जिस तरह उसके खानदान, उसके घर वाले या माहौल के जो अफराद उससे मिलते हैं, सोहबत में उसके जो लोग आते हैं, उसी तरीके उसकी परवरिश होती है। ठीक है। तो अब इस हदीस से हमें क्या पता चलता है, इसमें और हदीसें आपको मिलेंगी जो इसकी बात की वजाहत करती हैं। इस अहदीस से इस बात की गवाही मिलती है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर होता है। इसके बाद उसके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। यानी दुनिया में हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये क्या है, इसका मफहूम है। अब उसमें दो बातें हैं कि वो तौहीद पर है और उसकी तकलीफ भी है, यानी कि उसमें एक मकसद भी है। उसके पैदाइश के पीछे मकसद है। वो मकसद क्या है कि वो इस दुनिया में रहे तक में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। अब जो इसमें एक भी फितरत इस्लाम पर आता है कि उसके शऊर और उसकी समझ की, जब जैसी उसकी अपब्रिंगिंग होती है, वो उसके आसपास का जैसे माहौल पाता है, उसके वालिदैन, उसका खानदान उसे क्या कर देते हैं, या तो यहूदी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं। यानी कि वो इस्लाम से हटकर अगर आप किसी को पाते हैं, तो वो उसके घर वाले उसे वैसे अपना। लेकिन हर इंसान में तौहीद मौजूद होती है, तखलीद मौजूद होती है। अगर आप इस चीज को डिनाई करते हैं, तो इसमें फॉल्ट आपका है का है या हमारा होता है। अगर हम किसी को पाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में था कि हर कोई मुसलमान बन सकता था, या एक किताब आ जा सकती थी कहीं पर रखी होती थी, जाकर हम वहां पर पढ़ लें, या फिर एक बहुत बड़ी सी किताब की शक्ल में कहीं मिल जाती है, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप वहां जाके उसमें एक इंडेक्स में जाएंगे और निकाल लेंगे, जैसे कि हम डिक्शनरी को देखते हैं कोई वर्ड की मीनिंग को, ऐसे कर सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं हुई है दुनिया। दुनिया का जो निजाम है वो अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं, और कब कौन सी चीज पर क्या लाना है, किस मुकर्ररा वक्त पर क्या करना है, ये अल्लाह ताला के हाथ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में हमारी इबादतें हैं, हमारे हाथ में हमारे आमाल है, हमारे हाथ में हमारी सोच है, हमारे हाथ में हमारी कल्बी कैफियत है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, खुद की तराश। तो सबसे पहले यहाँ पर जस्टिफाई करना है। तो इस उन्वान पर भी हम बहुत तवील बात कर सकते हैं। तो किसी को पहचाने के अगर एक तौर पे हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको, कि कोई इंसान कैसे शिर्क कर सकता है, तो जवाब एक ही मिलेगा। हर किसी से अगर मैं पूछूं तो सब एक ही जवाब देंगे, मैं समझती हूँ कि उन्हें दीन की समझ नहीं है, उनके पास दीन का इल्म नहीं है। अच्छा, अगर कोई मुआशरे में कोई सताने वाला बंदा है, कोई पड़ोसी है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उसे दीन का इल्म ही नहीं है, इस्लाम तो हमारा ऐसा नहीं है। यही बात आई। अच्छा, अभी कोई एक औरत को आप देखेंगे जो कि फाहशाई का शिकार है, जो अपनी यानी शहवत पर उसे कंट्रोल नहीं है, तो वो माशरे के लिए खैर तो साबित नहीं होती। ना वो खुद के घर के लिए इज्जत का पहलू है,
और वो अगर वो बाहर निकलेगी तो शर का सबब है, तो शर ही शर है, उसमें खैर नहीं है उस औरत में। तो क्या हम उसको देखकर नहीं समझ पाएंगे कि इसके पास तो दीन की कमी भी है, दीन के इल्म की कमी है, और दीन उसके दिल में भी नहीं है। और उसके दिल में जो चीजें नहीं है वो क्या नहीं है? वो है ईमान। उसके दिल में ईमान नहीं। हर वो काम जो इंसान करता है शर के साथ में, या शर को बढ़ावा देता है, या शर पसंद होता है, मशरूर होता है, उसमें आप देखते हैं उसमें सब्र नाम की चीज नहीं होती, उसमें अखलाक नाम की चीज नहीं होती है, उसके मामलात बिगड़े हुए होते हैं, वादा खिलाफी होती है, उसमें झूठ पाया जाता है। अगर ये कोई इंसान ये है तो यूं समझ जाइए कि वो डिनाई करता है फितरत इस्लाम को, और वो खुद को धोखा देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि अपने नफ्स की जो इबादत करता है, नफ्स की इबादत कौन करता है? जो नफ्स की सुनता है। नफ्स की सुन रहे हैं तो क्या नफ्स का तज़किया होकर है? यानी कि नफ्स उसकी पाको साफ है? क्या उसकी नफ्स की तरबियत हो चुकी है? उसकी कल्बी कैफियत का मुहासिबा वो खुद कर चुका है या नहीं है? आज के जमाने में, आज के इस दौर में, जो निहायत ही जरूरी चीज हो गई है वो है तरबियत, जिसको हम में से कोई अहमियत नहीं देता। आजकल हर किसी के पास में बहुत अफसोस भी होता है, और आप इससे मुत्तफिक भी करेंगे, इत्तेफाक भी रखेंगे इस बात से, कि पढ़ाई की तरफ में ज्यादा तरजीह दी जाती है। लीजिए, कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई इसमें अ, हराम बात नहीं पाई जाती, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई कोई खराब बात नहीं। लेकिन प्रायोरिटी किस चीज की बन रही है? क्या हमारे बच्चे वक्त कुरान को उतना देते हैं, कुरान की तालीम को उतना देते हैं, जितना कि पढ़ाई में उतना टाइम देते हैं? स्कूल्स में जितना वक्त खाया जा रहा है, क्या हम उतना अपने बच्चों को अहमियत देते कि इतना वक्त दे रहे हैं? तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान के लिए वक्त, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। हम उसे माहौल की वजह से उस तरीके से लेकर जाते, क्योंकि हम ऐसा माहौल सेटअप हमारे हाथों से कर चुके हैं कि हमारे पास में अगर इज्जत का पहलू है तो पढ़ाई में अव्वल आना है, और ये किताबी पढ़ाई में यानी कि दुनियावी पढ़ाई में अगर वो अव्वल करीब आते हैं तो ही आप बना पाते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया अपने आप से बना, तो इसमें भी फितरत इस्लाम नहीं पाए। यानी वक्त आपको कहाँ पर देना है, कितना देना है, ये सब बातें आपको मौजूद मिलेंगी, कुरान में मिलेंगी, अस्वर हुस्ना से आपको मिलेंगी। सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़िए, आप वक्त कहाँ लगाते थे, कितना लगाते थे, कितने टाइम आप दावत देते थे, कितने टाइम इबादत में लगाते थे, सहाबा के साथ भी कैसा रहते थे, गुफ्तगू क्या कैसी हुआ करती थी, और सोहबत पर कितनी नजर थी। जब आप ये चीज देखेंगे आपको एक ऐसा पहलू निकल कर आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्की दौर में आप देखिए, मक्की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो उससे जो असबाक आपको मिलेंगे, सबसे पहले इबादत की तरफ नहीं लाया गया, बल्कि तरबिया व तज़किया की गई। सबसे पहले एक तो बताया गया सबसे पहले कि आप फितरत इस्लाम पर है, और फिर ईमान ऐसा लाया गया कि ऐसे ईमान की मिसालें आपको इस दुनिया में रहे तक भी नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फूट फूट कर मोहब्बत डाल दिए थे सहाबा कराम में कि कहीं कुछ भी अगर फरमान आ जाता किसी भी वक्त, कोई भी वक्त, सुबह हो शाम को आधी रात को, बस वो फरमान इलाही पर ऐसे खड़े उतरते थे कि बस मिसाल बन, ये ईमान के तकाजों को पूरा किया, तज़किया किए, तरबियत करी, और अखलाक। इबादत से पहले आप देखिए, मैं अपने से नहीं कह रही, आप देखिए सीरत को पढ़िए, उसमें आप ये भी पाएंगे कि इबादत की तरफ ले जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्सियत साजी की, यानी कि उनकी पर्सनालिटी को सबसे पहले निखारा गया। क्यों? इसके पीछे क्या मकसद था? बहुत बड़े बड़े काम अंजाम करने, यानी कि अगर आप ऐसे ही चुने नहीं गए,
नबी अगर जब बनाए जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। साथ में मुआशरे को लेकर चलना होता है, घर को लेकर चलना होता है, घर वालों को लेकर चलना होता है। और आपके साथ जितने लोग जुड़ते जाते हैं उनकी शख्सियत पे भी काम करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो आप देख रहे हैं कि आज जब हम सीरतें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है कि सहाबा कराम ने, खुलफाए राशिदीन ने, तबा ताबईन ने, आप जितनी मिसालें देखते जाएंगे, सहाबा कराम ने भी इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो वो ये पूरे तकाजों पर पहले खरे उतर चुके थे, यानी कि उन्हें पहले तो फितरत इस्लाम मालूम हुई। वहां पर उन लोगों ने क्या की अफसोस जताए कि हम इतनी देर तक इस चीज को नहीं समझे थे। शुक्र हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, मबऊस फरमाया, नबूवत हुई और फिर उनके दिल में ईमान जागा और वो लोगों ने इसको कबूल किया। फिर उसके बाद में उन्हें अफसोस हुआ, नदामत हुई कि अब हम अब तक तो पीछे थे, लेकिन अब हमें करना है तो खालिस जिंदगी करना है और इतने खुलूस के प्योरिटी के साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ में सरेंडर करना है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये कबूल किए। फिर ईमान इतना भर दिए, ईमान, मोहब्बत, तकवा, डर, और इतना आ गया था कि आगे जो काम आने की चीजें हैं, यानी कि मदनी जिंदगी में देखेंगे तो बड़े बड़े गज़वा हुए, बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई, फतेह फतेह ही फतेह हो रही है हर जगह। तो सबसे पहले क्या हुआ है वो देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं मतवज्जे किस चीज की तरफ मैं करा रही हूँ कि हमारा भी अगर यहाँ पर कारनामा है कि आपको मिसाली बेटी बनना है, मिसाली बहन बनना है, मिसाली बीवी बनना है, मिसाली माँ बनना है, तो आपको भी ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होना होगा। यानी कि आप खुद की शख्सियत साजी साजी करेंगे इन चीजों को देख करके। तो पहले पहलुओं को देखेंगे जो कि आपकी पहले पर्सनालिटी बनेंगे। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि ठीक है मिसाली बीवी में ये चीजें आनी चाहिए, यानी कि ये पॉइंट्स है, 10 है, 12 है। मिसाली बहन होना है, बेटी कैसे बनना है, औलाद की कैसे तरबियत करना है, आप पॉइंट्स को सुनेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन भी करेंगे। लेकिन शख्सियत ही नहीं बन पाई है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस फर्क को समझिए। यानी आपको मैं अगर अपनी बात, अपनी मैसेज के जरिए आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पहले अगर हम शख्सियत पर खुद की भी काम नहीं करेंगे, जैसे कि शख्सियतों पर काम हुआ गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े काम और अंजाम लेने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, तभी तो शख्सियत साथी पहले ही हो चुकी थी। तो आपको भी अगर अपने घर को संवारना है, आपको अपने रिश्ते से सही मुतालबा चाहिए और आपको जस्टिफाई करना है अपने हुकूक को लेने से पहले, अपने हकायक की तरफ जाने से पहले। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज बहनों, आपको भी अपनी शख्सियत साथी करनी होगी। देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट्स कहाँ से ले रहे हैं? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब यहाँ पर सीरत का भी बहुत बड़ा रोल आता है। हर उन्वान पर होगा, हर उन्वान पर हम सीरत को छोड़कर नहीं समझ सकते। इसमें भी जब फितरत इस्लाम का आप देख रहे हैं कि खानदान के लोग, घर के, मोहल्ले के, अफराद के, आसपास के लोग, तो यानी कि सोहबत में वो इंसान जो दिखता है उसके वैसे ही वो अपना दीन को समझता है। करेक्ट? वो आसपास में अपने जैसे पाता है, उसका माहौल जैसे होता है, वो अपने आप को ये समझता है कि मेरा दीन यही है और मुझे ऐसे ही करना है। करेक्ट? उसी तरीके से जब कोई भी कौम में रसूल भेजे गए हैं, नबी भेजे गए हैं, तो नबी क्या होते हैं? रोल मॉडल होते हैं उस वक्त के कौम के लिए। और अब हम इस वक्त में हैं, तो इस वक्त हमें किसे अपनाना है? ये बात कह दी गई और बात को क्लोज कर दिया गया है कि आपको जिसको देखकर अपनी जिंदगी गुजारना है, हो बहू उसी तरीके से, चाहे मामलात हो, इबादात हो, अखलाक हो, आपको देखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आखिरी नबी है, आपको उन्हीं को देखना है। आपको कितने भी फतावा चाहिए, आपको फतवे चाहिए, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं समझ में आता है, कोई मामला नहीं समझ में आता है,
विरासत का मामला नहीं समझ में आता है, या औरत का इंतखाब कैसे करना है निकाह के वक्त में नहीं समझ आता है, तो हम क्या करते हैं, अहदीस की तरफ मुतवज्जो होते हैं, मुतालिया करते हैं और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। यही तो है, यही तो है अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों भेजते हैं, कि हम उन्हें देखें, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना। अब हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम किसको देख रहे हैं, नबी को देख रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारा रब कौन है और उसकी कैसी इबादत है। उसी तरीके से हमारा मामला अगर होना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे मामला अच्छे होने चाहिए, यानी कि हमारी इबादत खुलूस वाली होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए तो पक्का ईमान होना चाहिए, तकवा होना चाहिए तो सही तकवा होना चाहिए, तौहीद होनी चाहिए, मुकम्मल तौहीद होनी चाहिए, अकीदा होना है, पक्का यकीन रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवाय किसी पर भी पक्का यकीन नहीं होना, किसी पर भी नहीं होना चाहिए, यानी किसी पर भी नहीं सिवाय अल्लाह के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, यही तौहीद के पक्का है। दूसरा, जब उसकी शऊर में आता है तो उसकी समझ कैसे, अब यहाँ शऊर की बात हो रही है, तो अब उसकी जो समझ होती है, जो उसके पास में सोच आती है, देखिए सोच ऐसी चीज है कि सोच पनपते रहती, मल्टीपल होते रहते, तो हमें क्या करना है, सोच को हमारे हाथ में रखना है, यानी कि आप इतना जायजा ले सकते हैं, सिर्फ एक्शंस का नहीं, बल्कि अपनी सोच भी जो पनप कर आती है, वो सोच का भी आप मुहासिबा करना, कि आपको सोच कैसी आती है, तो वो सोच भी अच्छे दिल की वजह से आती है, जहां पर ईमान अच्छा होता है। तो ये इन पहलुओं पर हमें काम करना होगा पहले तो, और साथ ही साथ हम अपने अपने रोल्स को भी देखेंगे, और हमारा क्या मकाम है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या पसंद किया है, हम दुनिया में रहें तो कैसे रहें। तो देखिए इस्लाम ने औरतों को एक मुनासिब मुकाम दिया है, औरतों को जितना अच्छा मुकाम, जितना खूबसूरत मुकाम, मुनासिब मुकाम इस्लाम में दिया, कहीं पर भी नहीं, कोई दूसरे अदयान में नहीं दिखता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने ये बताया है कि एक औरत के अंदर माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये चारों तरीके के रोल्स आ सकते हैं। इस्लाम ने इसके हुकूक की वजाहत भी की है कि औरत की बहैसियत माँ के हुकूक क्या है, बहैसियत बहन के हुकूक क्या है, बहैसियत बेटी के क्या हुकूक है, बहैसियत बीवी के क्या हुकूक है। और ये तसव्वुर भी इस्लाम ने ही दिया है कि जैसे मर्द इल्मी, दीनी, फिक्री और सलाहियत की या फिर दीनी महारत हासिल कर सकते हैं, उसी तरीके से खवातीन भी, औरतें भी ये सारे इल्म को हासिल कर सकती हैं, सलाहियतें पैदा कर सकती हैं, उसकी फिक्र कर सकती हैं, उसकी यानी जो सोच होती है, चाहे वो इल्म से हो, दीन से हो, वो जितने भी उसमें सलाहियत पैदा करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। ठीक है? ये अल्लाह ताला ने हमें ये सारे हकायत के साथ में भेजा है, हम कितना खरे उतरते हैं ये हमारा खुद का जायजा लेना है। और तारीख बताती है कि खवातीन ने भी अपनी दीनी और दुनियावी इल्म से इंसानियत को कहाँ से कहाँ पहुंचा, बड़े से बड़े सहाबा जैसे हजरत अबू हुरैरा, यानी अगर हम अ, मर्द हजरात को देखेंगे, जिसमें कि सहाबा कराम को अगर हम बहुत ही अपने पेश नजर रखेंगे, हजरत अबू हुरैरा, हजरत खुलफा राशिदीन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन वगैरह, सारी दुनिया के इल्म की मोहताज है। कि हम क्या देखते हैं, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हमा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहते थे, और बहुत सारी हदीसें इन्हीं से मरवी की गई। अबू हुरैरा भी वैसे ही साया बनकर रहते थे, तो बहुत सारी हदीसें उनसे रिवायतों से मिली है। तो हम क्या है, इनके मोहताज हुए हैं इल्म के एतबार से। इसी तरीके से बीबी आयशा, बीबी उम सलमा, बीबी उम हबीबा, बीबी हफ्सा और दीगर अजवाज मुतहरात और कुब्बार सहाबियात के इल्म के मोहताज, ये कौन है, ये खवातीन हैं, ये औरतें हैं, जिन्होंने महफूज कर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इतने इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये मर्तबा सिर्फ इस्लाम ने दिया है, दुनिया का कोई मजहब बिला मुबालगा, बिला एतराज, बिला तनकीद, बड़े हौसले से आप पढ़ सकते हैं कहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल सकती
आप अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया कर सकती हैं, आप पढ़ी लिखी औरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतालिया कीजिए और आपको पता चलेगा कि कहाँ से रिवायतें मिल रही हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, आप तारीख पढ़िए। तारीख पढ़ने से बहुत सारी फायदे होती हैं। और मेरा जो लास्ट उन्वान था जिसमें कि आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही थी, तारीख के मुताबिक में, तारीख हमें बताती है, तारीख की अहमियत मैंने बताई थी। उस मौजू का हिस्सा बनाने की वजह ये थी कि तारीख आपको क्या करती है, डिफाइन करती है कि आज के हालात पर हम जब नजर डालें तो उसकी कोताहियां, उसकी गलतियां हमें नजर आए। और जो पास्ट में, गुज़िश्ता जमाने में जो गलतियां हुई है, आज वो सब दोहराई ना जाए। तो पास्ट को यानी तारीख को, हिस्ट्री को पढ़ने की वजह ये बनती है, वजूहात ये बनती है कि हम जायजा ले सके सही और गलत का। और साथ ही ये हमारे अंदर में एक जो सोचने की कैपेसिटी होती है, उसका मंजर अलग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जब आपको तारीख पता हो, हिस्ट्री का पता चलता है। तो जो इस्लाम ने ये हुकूक सारे दे चुके हैं, ये इज्जत मिली है, ये मकाम मिला है, ये हुकूक अगर मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे आप रिलेट भी कर सकती हैं। सूरह हिसाब की 35 आयत में बहुत खूबसूरत आयत है, और बहुत सारी जगह माशाल्लाह इतनी अपलोड होती है ये आयत के बारे में। और खास करके जब कारी इस पर जो मश्क करते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है। जो कि आयत है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, ये इतनी प्यारी आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए इसमें ये आयत आपको सारा टोटली मिसकंसेप्शन दूर कर देगी और हमारा एजाज आपको बता देगी कि हम औरतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और ईमान वाले और ईमान वालियां, और फर्मा बरदार और फर्मा बरदारी और करने वाली औरतें, और सच्चे और सच्चियां, सबर वाले, सबर वालियां, आजिजी करने वाले, आजिजी करने वालियां, खैरात करने वाले, खैरात करने वालियां, रोजे रखने वाले, रोजे रखने वालियां, और अपनी बारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और बहुत याद करने वालियां, उन सब के लिए, देखिए नोट डाउन कीजिए, उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शीश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। यानी कि एक अगर आप पहला चुनेंगे, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, यानी अल्लाह ताला दोनों की तरफ निस्बत कर रही है। अगर नेकी एक मर्द को मिल रही है, जो नेकी खैरात करने की हो या नमाज पढ़ने की हो, तो अगर मुस्लिम औरत भी वो करती है तो उसको भी बड़ा उतना ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मर्द को 10 मिलेगा तो औरत को 5 मिलेगा। अल्लाह ने यहाँ पर कितनी बराबरी की है। और ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये हमारा अच्छा मुकाम नहीं तो क्या, ये हमें इज्जत का मुकाम नहीं तो और क्या। और शान नुजूल की तरफ अगर आप भी आयत को देखेंगे, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा जब अपने शौहर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा से वापिस आए, तो अजवाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना से मिलकर उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या औरतों के बारे में भी कोई आयत नाजिल हुई है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, अब मतलब वो हबशा से वापस हुई क्योंकि वहां पर पहली हिजरत हुई थी। तो उनकी फिक्र देखे कि हमारे लिए भी कोई आयत उतरी है क्या। तो उन्होंने नहीं कहा। और ये अर्जी गई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कि ऐसा सवाल आया है कि औरतों के लिए तो ये तो बड़ा नुकसान लग रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। तो अर्ज कि उनका जिक्र कुरान में खैर के साथ होता ही नहीं जैसे कि मर्दों का होता है। तो इस पर ये आयत करीमा नाजिल होगी। सुभान अल्लाह, उनकी फिक्र देखिए, यानी कितनी प्यारी फिक्र है कि अल्लाह ताला तस्लीम बख्शे, अच्छी खूबसूरत आयत ये देकर बोले कि अगर मर्द को जो चीजें मिल रही है, अब देखिए अगर मस्जिद में हम भी जाकर नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी उतना ही सवाब मिलेगा जो मुख्तदी को मिलता है मर्द के साथ। तो क्या ये बराबरी नहीं है। यानी अब हमें किस चीज की शिकायत है, हमें किस चीज की शिकायत।
हमें शिकायतें तभी हमारी जबान पर आ सकेगी अगर हमें कहीं कमी कर दी जाए। तो शिकायत तो हमें सिर्फ दुनिया की और एतबारी जिंदगी पर भी ही है जहाँ पर हम मतलूब है किसी से, यानी हमें कुछ मुतालबा चाहिए। हम मतलूब किससे होना चाहिए, हमारा मुतालबा किससे होना चाहिए? अल्लाह से, कुरान से इत्तेबा कर, सुन्नत को फॉलो करना है। इसी में हमारी फिक्र होनी चाहिए। तो इस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, ये शान नुज़ूल बताई साहब। इनके 10 मरातिब मर्दों के साथ जिक्र किए गए और इनके साथ इनकी मदह फरमाई। आयत में क्या मिला है हमें? मर्दों के साथ औरतों के जो 10 मर्तबे हैं, उनके जो मरातिब है, उसकी ये तफसीलें हैं। इसको इसको तफसील से अगर आप एक एक आयत को नोट डाउन करेंगे तो ये ना बहुत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पहली जो इसमें हमें मिलती है, देखिए, एक मर्तबे और हुकूक की और इज्जत और एजाज की बात है। अजमत को देखिए आप, पहली चीज, वो मर्द और औरतें जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए और उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत की और इन अहकाम के सामने सर तस्लीम कम कर, अल्लाह ताला उनके लिए कह रही है, उनका जिक्र कर, जो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हुए, कलमा तो पढ़े हैं लेकिन उस पर खरे भी उतर रहे हैं और उसमें इताअत भी मिल रही है। किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि। फिर दूसरी चीज, वो मर्द और औरतें जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की और तमाम जरूरियातें दीन को ही माना। तीसरा, वो मर्द और औरतें जिन्होंने इबादत पर मुदावमत अख्तियार की और उन्हें उनकी हुदूद और शराइत के साथ कायम। चौथा जो इसमें मिलता है हमें, वो मर्द और औरतें जो अपनी नीयत, अपने कौल और अपने फेल में सच्चे हैं, अपनी बात में, अपनी जबान में, अपनी नीयत में सच्चे हैं। सच्चे मर्द, सच्ची औरतें। हम हमारी यहाँ पर देख रहे थे हमारी कितनी चीजें मिलेंगी हमें कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा मुकाम रेडी कर रहे हैं, अल्लाह ताला रेडी कर रहे हैं। तो ये एजाज किसको मिल सकता है? अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह की मोहब्बत जिससे मिल जाए तो फिर उसे दुनिया का कोई गम क्यों खा जाएगा? दुनिया की दुश्वारियां उसे तो बहुत कम लगनी चाहिए, क्योंकि आपको तो कहा जा रहा है कि आप ये सब चीजों पर खरी उतरते हैं। आप ये 10 मर्तबे ले चुके हैं, आपको इतना मर्तबा है, आपको किस चीज की दुश्वारी है? पांचवा, वो मर्द और औरतें जिन्होंने नफ्स पर इंतहाई दुश्वार होने के बावजूद अल्लाह ताला की रजा के लिए इताअतों की पाबंदी, ममनुआत से बचते रहें, मुसीबतों में बेकरारी और शिकायत का मुजाहरा नहीं। फिर छठी बात जो इसमें कहकर आती है, वो मर्द और औरतें जिन्होंने इताअतों, इबादतों में अपने दिल और आज़ा के साथ आजिज़ी और इकसारी की, यानी कि अख्लाक से लगे, पुरखुलूस रहे, प्योरिटी और सिंसियरिटी के साथ में, अपने दिल के, अपने हर आज़ा के साथ में ऐसे खुशू और खुशूस के साथ में इबादतें की कि अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया। वो मर्द और औरतें सातवां, जिन्होंने अल्लाह ताला के अता किए हुए माल में से उसकी राह में फर्ज और नफली सदका दी। फर्ज क्या होती है? ज़कात है। उसके अलावा जो आप जी करे आप देते रहे तो वो नफली सदका है। तो सदका देना भी अगर मर्द के लिए उतना है तो उतना ही औरतों के लिए भी, कोई इसमें रद्द बदल नहीं कि मर्द को इतना ही मिलेगा तो औरतों को कमी कुछ हो जाएगी। फिर उसके बाद रोजे के लिए भी बताया जा रहा है कि मर्द जो अगर रोजे रखते हैं, अय्याम बैत के रखते हैं, तो औरतों को भी अगर उसमें शुमार किया जा रहा है तो उन्हें भी उतनी ही नेकी मिलेगी जितनी की मर्द। इसमें कोई तब्दीली है नहीं। वो मर्द और औरतें जिन्होंने फर्ज रोजे रखे, नफली रोजे भी रखे, मनकूल है कि जिसने हर हफ्ते एक दिन हम सदका किया, वो खैरात करने वालों में, और जिसने हर महीने अय्याम बैत यानी कमरी महीने के जो 13, 14, 15 तारीख के 3 रोजे रहते हैं, वो रोजे रखने वालों में शुमार किए जाते हैं। अब फिर इसमें 9, वो मर्द और औरतें जिन्होंने अपनी इफ्फत और अपनी पारसाई को महफूज रखा और जो हलाल नहीं है उससे बचते हैं। और 10वां,
आखिरी वो मर्द और औरतें जो अपने दिल और जुबान के साथ कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। कहा गया है कि बंदा कसरत से जिक्र करने वालों में उस वक्त शुमार होता है जबकि वो खड़े, बैठे, लेटे, हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते। तो ये पूरे 10 पॉइंट्स का खुलासा ये है कि जो औरतें इस्लाम लाएं, ईमान रखें, इताअत गुजार रहें, अपने कौल से अपनी फेल से सच्चे रहें, सब्र रखें, आजिजी, इंकिसारी और सदका व खैरात करने में, रोजा रखने में और अपनी इफ़्फ़त को, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हुए, अपनी पारसाई की हिफाजत करने में कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने में रहे। मर्दों के साथ है तो अच्छे से है। तो ऐसे मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ताला ने उनके आमाल की जज़ा के तौर पर बख्शीश, बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। अपने खुद के ऊपर अगर काम करना है तो वो काम करना भी हमारे लिए अजर का बास बन रही है। तो अल्लाह ने कुरान को खोल कर बता दिया गया है। हम देख सकते हैं, मुतालिया कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ने मर्द को जो हक दिया है वो मर्द का है और वही औरत का भी। मर्द मुसलमान है तो औरत भी मुसलमान है। मर्द मोमिन है तो औरत भी मोमिना है। मर्द अगर आबिद है तो औरत आबिदा है। मर्द को अगर साइम कहते हैं, रोजेदार वाला कहते हैं, तो औरत भी साइमा है। यानी ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि औरत रोजे नहीं रख सकती है, इसको ये सवाब से किनारा कर दिया जाता है। नहीं, वो भी साइमा कहते हैं। अगर उसको साइम के लकब से पुर है तो उसको साइमा कहते हैं। अगर मर्द तहज्जुद गुजार है तो औरत भी तहज्जुद गुजार। मर्द अगर हाजी है तो औरत भी हाजन है। मर्द अगर उम्रा करता है तो औरत भी उम्रा करती है। मर्द अगर नमाज अदा करता है तो औरत भी नमाज अदा करती है। मर्द अगर कुर्बानी करता है तो औरत भी कुर्बानी करती है। मर्द ज़कात देता है तो औरत भी ज़कात देती है। मर्द अगर सदकात करता है तो औरत भी सदकात करती है। तो ये बराबरी, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये अजमत किसने दी है? किसने दी है? सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये इज्जत किसी ने नहीं बख्शा। ये ये हमारा असली मुकाम है। अगर वासे किया तो ये हमारा सच्चा मुकाम है। ये हमें हमें बनाया गया, हमें ऊंचा किया गया। तो सिर्फ इस्लाम ने किया है। कुरान की नजर में औरत का क्या मुकाम है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा क्या, और हदीस की नजर में औरत का क्या मुकाम है, सहाबा की नजर में औरत का क्या मुकाम, फुकहा की नजर में औरत का क्या मुकाम, और उनके हुकूक क्या है, उनके मसाइल क्या है, उनके काम क्या है, ये सारी चीजें। तो अब जाहिलियत को तो छोड़ दे, मौजूदा दौर की जो जाहिलियत के अहवाल अगर आप देखेंगे, ये सब को पेश नजर रख के अगर आप जमाने की तरफ में नजर डालेंगे, आज भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ के कौन से इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत सारे मसाइल निकल कर आते हैं। तो ये जब हमें एजाज इतना मिला है तो अब यानी हमारी कोताही कि हम क्या कर रहे हैं इसको समझ नहीं पा रहे। तो अल्लाह ने तो बहुत अच्छा मुकाम हमें दिया, हमें हक़ाइक़ के साथ में दिया, हमारे मसले मसाइल को सुलझाने के लिए सारी कुछ चीजें हैं। तो ये अफसोस हमें करना चाहिए कि हमारे पास में हमारा मुकाम हम खुद क्या बनाए, लेकिन हम क्या कसूर इस्लाम का ठहराएंगे? इस्लाम ने अपने मुकाम को ना समझे, अगर हम हमारा मुकाम नहीं समझेंगे तो इस्लाम का कसूर नहीं है। इसकी अपनी ये जहालत है कि हम दीन को नहीं जानते, हम उसको वैसे देखे ही नहीं जैसे कि हमें नजर डालना चाहिए। इस्लाम तो ऐसी नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है, ये ऐसा दिन है जो औरत का मुहाफिज है। ये इस ये हमने मलिका बना गया है, औरत को मलिका बनाता है इस्लाम। इस्लाम उसकी इज्जत का मुहाफिज है। इस्लाम उसकी जान का मुहाफिज है। इस्लाम उसको बहुत बुलंद मुकाम पर लेकर जाता है, बहुत इज्जत से देखता है, और इज्जत के साथ हमें भेजा गया है। ये हमारे लिए मुहाफिज। तो ये अगर हम नहीं जानते हैं तो इसमें समझिए हमारी जाहिलियत होगी, ये हमारा कसूर होगा। हम इस्लाम को कुछ नहीं कह सकते हैं। इलाकों पर अगर नजर डालेंगे तो और बहुत सारे मसले मसाइल कैसे निकल कर आते हैं, कैसे झगड़े हो जाते हैं औरतों के लिए, औरतों को लेकर हो जाते हैं, औरत की जुबान से हो जाते हैं, औरत की हसद की वजह से हो जाती हैं, औरत की शर करने की वजह से हो जाते हैं। तो हम बहुत सारे शर को मनकूस कर सकते हैं, उस फेल को खत्म कर सकते हैं, उन खौल को
मिलाया जा सकता है, जो हमें चुभ सकती हैं। तो ये बहुत सारे चीजों का पहलुओं पर हम नजर डालेंगे, जो कि अगर हमें एक मिसाली बीवी, मिसाली बहन, मिसाली माँ, मिसाली बेटी, तो सब कुछ अगर बनना है, तो सबके साथ भी की जरूरत है, क्योंकि हमें इस बात की तो दलील मिल गई है कि हमारा मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया है, हमारा इज्जत क्या मुकाम पर है, क्या लेवल पर है। लेकिन हम उस लेवल पर खड़े अगर नहीं उतर रहे हैं, अगर हमें कोई भी शिकायत होती है, चाहे वो इज्जत के पहलू से हो, चाहे वो किसी की नजरिए के पहलू से हो, या कोई आपको हकीर समझता हो, तो देखिए देखने वालों की नजर में हो सकती है, लेकिन इस्लाम ने बहुत अच्छा मुकाम अता किया है, बहुत इज्जत बख्शी है, हमें मलिका बनाया गया है, दीन हमारा हाफिज है, इस्लाम हमारा हाफिज है, इस्लाम हमारे लिए रहमत है, जहमत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम औरतों को दीनी फहम व फराज अता फरमाए और उनकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज की टॉपिक थी हमारी, ये जो एजाज हमें मिला है, जो मुकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है,